Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Saleha. So 9th class students, today I have brought the pairing scheme of English 2025 and I'll tell you the complete paper pattern, the scheme and how can you get full marks 75 out of 75 and A plus grade in your English paper. So stay with me, but first subscribe my channel. If you are new here, press the bell icon for my next video because I will tell some important tricks and guideline to get full marks in your board exams. So that's why you have to watch complete video. Okay students, class 9. So get ready. Here I will share with you the complete paper pattern. The question number 1 in your paper will be based on the MCQ. Okay, there will be 19 MCQ. So first MCQ will be based on your choose correct form of verb and it will come from your grammar book and PTB book, and that is the page number is 163 to 168 and it carries 5 marks. This part A will be carried 5 marks. Okay, and you have to pick out the correct form of verb, first form, second form, third form, or the present participle or the past participle. So second MCQ will be taken from the text book. ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा. कोई भी वहाँ से वो सेंटेंस उठा के आप लोगों को देंगे कि इसमें कौन सी करेक्ट एडजेक्टिव लगेगी, नाउन लगेगा या preposition यहाँ पर ऐड होगा. Okay. So the third MCQ will be based on the synonyms and antonyms. So as you all know, synonyms mean same meaning and antonyms mean opposite meaning. Okay. So you have to be very careful that if they are asking about the synonym, then you will write the same meaning when at the closest meaning of the word. And if they are saying you have to pick out the antonyms, यानी आप लोगों ने opposite बताना होगा, तो फिर आप लोगों ने जो उसका बिल्कुल उलट होगा उसको right option को टिक करना है. Okay? And then part D is choose the correct option according to the grammar. Now they will give you one sentence. For this MCQ you have to complete grip on the tenses. अगर आप लोगों के tenses ठीक होंगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये grammar part के यहाँ पर कौन सी form of verb आनी है. इसके लिए आप लोगों के tenses clear होना बहुत ज़रूरी है. Okay students, question number 1 is clear. First part क्या है? उसमें आपने करेक्ट टेंस के मुताबिक अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. और ये वाला जो सारा पार्ट है आप लोगों की बुक में सॉल्व MCQ जो होते हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी कर लेने हैं. और आप लोगों के चैप्टर्स के एंड पर भी जो एडिशनल MCQ और एडिशनल सारे जो सेंटेंसेस होते हैं MCQ होते हैं वो सारे आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं. देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पार्ट A, क्वेश्चन नंबर 1. And it carries total 19 marks. Clear MCQs portion and the also book work is included. आप लोगों का book work भी MCQ में आता है, इसलिए आप लोगों ने book work भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना है. उसकी form of verbs, उसके important concept, just like simile, metaphor, personification, conditional sentences, first condition, second condition, third conditional sentences. So all of you, it should be ready. Now look at the subjective part students. It will carry 56 marks in your paper. And the second question will be based on the short question answers. Attempt any 2 and it carries 10 marks. Okay. There will be 8 question answers and you have to attempt any 5. जो आप लोगों को best 5 आते होंगे वो आप लोगों ने करना है. And at least it should be contained on 3 to 5 lines. बिल्कुल 1 to 2 lines का आप लोगों ने आंसर नहीं लिखना. Because अगर आप 1 to 2 lines का आंसर लिखते हो तो अगर उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, तो आप लोगों के जो 2 मार्क्स हैं उसमें से भी 1 माइनस हो जाता है. इसलिए आप लोगों ने कंप्लीट आंसर 3 to 5 लाइन्स या 3 to 4 लाइन्स का लिखना है. एंड देयर शुड बी नो सिंगल मिस्टेक ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग. ऑलराइट. सो नेक्स्ट यू हैव 5 questions and 5 question will come from the exercise and 3 from lesson. यानी 3 उसमें एडिशनल क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के बॉक्सेस बने होते हैं
और जो 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें वो आप लोगों की एक्सरसाइज वर्क से आएंगे। ऑलराइट क्लास 9th। सो इस तरह से आप लोग 10 मार्क्स अपने कंप्लीट हासिल कर लोगे अगर आप इस रूल को फॉलो करते हुए ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे और उसकी प्रॉपर डिटेल लिखोगे, तो देन यू विल बी एबल टू गेट दिस 10 मार्क्स, राइट? Okay, now look at the question number 3 here. Translate any two of the following paragraphs into Urdu out of 3 and it carries 8 marks. Okay, it means there will be 3 paragraphs from 3 different chapters, just like Sultan Ahmad Masjid and the Savior of Mankind and 3 Days to See. हर चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा and you have to attempt 2 पैराग्राफ्स आउट ऑफ 3 होंगे, आप लोग उनमें से 2 पैराग्राफ लिखने हैं। अब मोस्टली इस पोर्शन में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो रॉन्ग उर्दू लिखते हैं, यानी उर्दू का जो उनका लिखने का तरीका है गलत उर्दू लिखते हैं, या फिर एक वर्ड पढ़ के उसकी उर्दू लिख दी और उसके बाद उसका सेंटेंस प्रॉपर मेकिंग नहीं करते। यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस, पहले अपने माइंड में मेकअप करें उस सेंटेंस को, फिर उसको सेंटेंस फॉर्म में लाकर देन यू विल राइट ऑन द पेपर, तब आप लोग उसको पेपर पे लिखोगे। तोड़ मड़ोड़ के उस सेंटेंस को अगर आप लिखोगे तो यू दैट ट्रांसलेशन विल बी रॉन्ग, वो आप लोगों की ट्रांसलेशन रॉन्ग हो जाती है कि आप लोगों ने प्रॉपर सेंटेंस मेक नहीं किया होता, इस वजह से आप लोगों के ट्रांसलेशन में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है और उसकी फॉर्मेशन सही लिखनी है, इमला की गलतियां नहीं करनी, तब आप लोगों के ये 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, राइट? ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और explain the following stanza with reference to the context. Okay, here you can see this part is, so first you have to write down the summary. In summary you must have to write down the quotes and the stanzas. अगर आप सिंपल बस एक स्टोरी वो बुक से उठा के एक पेज की अगर आप समरी लिखोगे तो यू विल नॉट गेट 5 मार्क्स। 5 वैसे मोस्टली नहीं आते, 4 मार्क्स या 4.5 मार्क्स इस तरह से समरी में आते हैं, लेकिन जिसकी विदाउट मिस्टेक हो। रिमेंबर अबाउट द टेंस, अबाउट द ग्रामर मिस्टेक इसमें समरी में नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड पोर्शन यू कैन सी, इसकी चॉइस में क्या आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पैराग्राफ उठा के इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप लोगों ने अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, इट मीन्स सबसे पहले यू विल राइट द रेफरेंस, जैसे आप उर्दू में हवाला मतन और सियाको सबाक और तशरीह लिखते हो, सेम इज द केस विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट यू विल राइट इन द रेफरेंस द पोएम नेम एंड द पोएट नेम, शायर का नाम और नज़म का नाम। इन कॉन्टेक्स्ट यू विल राइट the context, you will write the theme of the poem, the central idea of the poem. ओके, वो आप लोगों ने उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपने एंड पर उन लाइंस को एक्सप्लेन करना है, दोज हैव बीन गिवन इन योर पेपर, जो आप लोगों के पेपर में गिवन स्टेंजा होगा, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, अगर आप लोग सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हो ट्रांसलेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, तो वो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलते, 2 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते फिर उस वाले क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ओके, मोस्टली ये एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं, बट समटाइम्स इडियम्स और फ्रेजेस आप लोगों के चैप्टर्स में से भी वो पिक आउट करके आप लोगों को दे सकते हैं, और आप लोगों ने कंप्लीट उसको करेक्ट सेंटेंस में यूज करते हुए यू हैव टू मेक द सेंटेंस। अगर आप उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब सही नहीं लिखते, टेंस को सही यूज नहीं करते, उस वर्ड या ईडियम को सेंटेंस में सही सेटअप नहीं कर पाते, तो दैट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। सो मस्ट प्रिपेयर द सेंटेंस इन योर माइंड फर्स्ट एंड देन राइट इट डाउन ऑन योर पेपर। ओके, इस तरह से एकदम से और कटिंग से अवॉइड करना है आप लोगों ने, पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कटिंग नहीं करनी, कोशिश करें एक सिंगल कटिंग भी पेपर में ना हो, नहीं तो अगर आप कट करके सेंटेंस लिखते हो तो दैट विल बी कंसीडर, वो समझते हैं कि शायद आपने चीट करके लिखा है और वो चेकर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। ऑलराइट, so now look at the question number 6 here. Write down the letter, story and dialogue.
your first preference should be on the letter writing. And what is about the letter writing? How can you attempt a good letter? Always start the letter from the top of the page. आप लोगों की शीट पे टॉप ऑफ द पेज आप लोगों ने लेटर पैटर्न स्टार्ट करना है, कभी भी एंड ऑफ द शीट लेटर स्टार्ट नहीं करते. And write the complete correct paper pattern just like examination hall, city, dot A, dot B, dot C. And then, or one important thing, write the complete date spelling just like April. So April is APRIL. आप पूरा April लिखोगे, आप APR नहीं लिखोगे. That is wrong. Okay. And then the complete body part and the ending of the sentence, ending of the letter. आप लोगों ने सही तरीके से पूरी शीट का एटलीस्ट पूरी शीट आप लोगों की लेटर पर होनी चाहिए. Then you will get 8 marks. And if you write the story in the choice, so very careful about the tense. अब स्टोरी में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक टेंस में एक सेंटेंस में आपने प्रेजेंट टेंस लिख दिया, दूसरे सेंटेंस में आप पास्ट टेंस लिख देते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड सेंटेंस में यू विल यूज फ्यूचर टेंस, विल शैल यूज कर देते हो. दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग और आप लोगों की सारी स्टोरी कट हो जाती है. इसलिए जब भी स्टोरी लिखनी है मस्ट यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस. और अगर कोई ऐसी कोटेशन आ जाती है समवन सेइंग, देन यू विल राइट इन द कोटेशन मार्क और इन द इन्वर्टेड कॉमास इन स्टोरी राइटिंग अगर किसी की सेइंग है. ओके. और जस्ट राइट द मोरल लाजमी लिखना है, तब आप लोगों को स्टोरी के मार्क्स मिलते हैं. एंड इफ यू वांट टू डू द डायलॉग, so most important thing about the dialogue writing is you have to be very careful about the punctuation marks. If the one's character is asking a question, then don't forget to put the question mark लगाना नहीं बोलना. If someone students is writing the imperative sentence some kind of order, then you have to put the exclamation marks, comma, full stop. इन सारी चीजों का ध्यान रखना है when you are writing the dialogue. Okay. Now question number 6 is clear. What is the rule to write a letter? What is the rule to write a story? And what is the rule to write a good dialogue? And it should be consist at least 2 to 3 pages dialogue writing. सिर्फ इतना सा पैराग्राफ लिख के dialogue को नहीं छोड़ना. And proper starting and proper ending. Clear students? Question number 6. Now look at the question number 7 here. Read the following passage carefully and answer the question given at the end. Complete. This is the most easiest question in your paper class 9 students. अगर आप लोग correct comprehension लिख लेते हो तो आप definitely complete 10 marks हासिल कर लोगे. Okay, but the question and answer should be accurate. To the point answer लिखना है आप लोगों ने, unnecessary detail नहीं लिखनी, और जो question पूछा गया है उसी के according answer हो. नहीं तो अगर आप unnecessary detail लिखोगे या wrong answer लिखोगे तो आप लोगों के 2 marks deduct हो जाएंगे. Okay, each question carry 2 marks and there will be 5 questions in your. और ये बहुत easy होता है, mostly ये आप लोगों की grammar composition से ये वाला part आता है. Okay students, clear question number 7. Now look at the question number 8 here. Translate any 5 sentences into English out of 8. Okay. ये थोड़ा सा complicated है. If you have the complete grip on the tenses, then you will be able to write the correct tense in your sentence. आप लोगों ने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है. First identify the tense, whether it is the present indefinite, past indefinite or future indefinite. Then you have to use all the form of verbs according to the sentence. और इसके लिए आप लोगों के practice is required. अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप लोगों का ये पार्ट रॉन्ग हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट रिक्वायर्ड. ऑलराइट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड इट कैरीज 5 marks. ओके, so change the voice. There will be no choice in active voice and passive voice. There will be 3 active to passive you have to do and 2 पैसिव टू एक्टिव, यानी 3 जो होंगे वो आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, और जो 2 उसमें सेंटेंस होंगे वो आप लोगों ने पैसिव टू एक्टिव करने हैं. इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट रिक्वायर्ड. और आप लोगों की ग्रामर कंपोजिशन के जो सारे एटलीस्ट एक्टिव पैसिव है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज द कंप्लीट पेपर पैटर्न ऑफ योर क्लास 9 स्टूडेंट्स. अगर आप इन रूल्स को, इन टिप्स को, इस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे
So definitely students, you will get good grades and A plus grade, and do the practice. Spellings, grammar mistake नहीं होनी चाहिए. तो definitely and inshallah you will get good grades. पेपर शुरू करने से पहले लाजमी तौर पर अल्लाह का जिक्र कर लें, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें, and then you can start your paper. I hope students आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you like this video, please press the bell icon for my coming video, like, share and comment it, and subscribe my channel for my coming videos about class 9's final exams. I will also share the notes and the guest paper with you. Okay, so take care and Allah Hafiz students.